When you are talking about fire, are you assuming that your family will listen to everything that you have planned? पहाड़ों पे रहना आपको 1 साल अच्छा लगेगा, 2 साल अच्छा लगेगा, उसके बाद आप पक जाओगे. Certain personalities which can't survive in isolation. Correct. Right? There are certain personalities that are very good in isolation. But you need to identify कि आपकी personality कैसी है. डिप्रेशन का बिगेस्ट रीजन जो होता है वो है रूटीन चेंज. आप जिस रूटीन पे हो उस रूटीन में जरा सा भी चेंज आता है, लेट्स से फॉर 1 वीक, फॉर अ मंथ, you will definitely be in the situation of depression. Hi guys, welcome to the Per Annum Money podcast again. And आज का topic थोड़ा interesting है, थोड़ा different है, especially for all the fire folks, because we all know Per Annum पे जो community पूरी है हमारी of more than 14-15,000 subscribers, a lot of people follow us for fire podcast, right? एंड हम थोड़ा आज हिडन रिस्क ऑफ फायर के बारे में बात करने वाले. दिस इज नॉट एन एंटी फायर पॉडकास्ट, बट दिस इज डेफिनेटली अ पॉडकास्ट विच इज गोइंग टू टेल यू अ लॉट ऑफ थिंग्स विच यू माइट नॉट हैव कंसिडर्ड व्हाइल अप्रोचिंग फायर. डेफिनेटली फायर एज अ कॉन्सेप्ट बहुत लोगों को अपील करता है, एंड जैसे आप फायर के बारे में सुनते हो, समझते हो, बहुत लोग उसको चेज करने लगते हैं. बट there are a lot of mistakes that one can make. A lot of analysis needs to be done. क्या मेरे लिए fire सही है या नहीं? And there are a lot of planning and efforts that are needed. There are a lot of psychological factors that are needed to be considered before taking this crucial step. So today we have a very special guest with us. We have Ranjan with us. Hi Ranjan. Yeah, hi Vikas. Thank you for having me here. So Ranjan, as you might know, is a very popular YouTuber in the finance space. He has just reached 3 lakh subscribers. So congratulations on that. About to reach actually. Yeah. Falling short of जब तक live होगा हो जाएंगे. Yeah, hopefully. Right. So thank you so much for coming today here. Yeah. Thank you for having me here, Vishwas. So, I mean, I always, wanted to meet you, but पता नहीं था कि ऐसे podcast के through हमारी मुलाकात होगी. We have been connecting through phones and multiple meetings. Yeah. So Ranjan, you made a video, I think about 6 to 9 months ago. I'm not sure of the timeline. Yeah. Right. Regarding fire. Yeah, Yes. regarding fire, where you stated a lot of factors which, let's say, people don't consider, and specific to Indians, right? Mm-hmm. And I would definitely like to discuss that. I saw that video and I thought कि there's a different perspective, right? Yeah. अभी हमारे podcast पे जितने ही perspective आए, that let's say are people who have already achieved fire, or let's say are retired, or let's say are chasing fire, right? But I see certain mistakes even that they have made. They have not been able to cope up with that. We'll discuss each of the problems one by one, with what, let's say, Ranjan considers let's say some challenges that can come, which even I consider certain challenges that can come. So we'll take them one by one. So let's start maybe with the first one. So first one is obviously inflation. Right? Inflation is something which nobody can have control over. Inflation is always going to rise. So we'll also give the counter arguments or the narrative, which let's say, and even what I feel is, जो मैं भी सोचता हूँ कि inflation, हाँ, मतलब technical terms में inflation is let's say about 6 to 7%, but it depends on a lot of other factors. Inflation की अगर हम बात करें, because आप कौन से शहर में रह रहे हो, वो एक बहुत बड़ा factor है, right? अगर आपका प्लानिंग ये है कि आप अपना फायर अचीव करने के बाद आप किसी छोटे शहर में बस जाओगे, वो कर जाओगे, तो भी एक तरीके से सेंस बनाता है कि वहाँ खर्चे कम होंगे, right. वो सब होगा, आपका रेंट बहुत कम होगा, या फिर आपकी ओन प्रॉपर्टी है, जो भी आपका केस और सिनेरियो आपको बेटर पता है. बट living in a metro city, I don't think your inflation is 6%, because medical inflation in metro cities is really high. Yeah, correct. Right? And I'm not talking about those insurance, I'm particularly talking about just your OPD fees, your regular medical medicine bills and all of that. Even education inflation is very high. Education inflation is also very high. And in general, in metro cities, especially like cities, if I talk about Gurgaon, Noida, Delhi, the way these cities are designed, or let's say those the market forces, like how they work here, it's crazy to get even a haircut in Gurgaon with a minimum cost you about 200 to 50 rupees. Right. It can go up till 400. By next year, it will seem very normal to a lot of people. And they will also convince for other things. Right. So that's definitely there. And assuming, yes, a lot of people, these are very frugal people who, let's say, want to achieve fire, but there are certain expenses which are, let's say, not within your control, and you will have to face very heavy inflation, especially in metro cities. So the point I'm trying to say is that it is better to live in tier 2, tier 3 or tier 4 cities if, let's say, you really want to do fire or pursue your hobby somewhere in such a small town. That's, I think, is still fine. But my viewpoint here is that retiring early is your decision, right? Right. Your family might not be comfortable shifting to a city which is not obviously. a metropolitan city. Right. Maybe your son, maybe your daughter, they want to live in metropolitan city, get better education, stay with family. Yeah. There are a lot of things.
Yeah, You which know, you can't predict. So yeah, I yeah. think this is one another good point that your family should be in complete. So I mean, when you are talking about fire, are you assuming that your family will listen to everything that you have planned? Right. Moving to a city which is not a metropolitan city, कोई छोटी सिटी जहाँ पे खर्चे कम है, तो वहाँ पे एजुकेशन भी शायद उस लेवल की ना मिल पाए जिस लेवल Right. के आपके बच्चों को आदत पड़ चुकी है बाय द Right. टाइम यू वर इन अ जॉब. तो Right. लेट्स से इफ यू are planning to retire by 45 and you had your first child at 30, he is already 15 years. 15 years का बच्चा अच्छा खासा समझदार होता है, एडोलेसेंस जो एज बोलते हैं वहाँ पे आ चुका होता है, तो वहां से उसको शिफ्ट करना किसी छोटे शहर में नॉट पॉसिबल. ही विल बैकफायर यू कि क्यों, Yeah. व्हाई आर यू रिटायरिंग, Right. है ना, इट्स योर प्लान नॉट माइन. हाँ, मतलब रिटायरमेंट से ज़्यादा उसी चीज़ पे क्वेश्चन करेगा कि मतलब obviously he has his हाँ, friends here, सो यू his हैव टू education is here. थिंक अबाउट Right. एवरीथिंग. Right. रिटायरिंग अर्ली एक कॉर्पस बिल्ड करना नहीं है, और रिटायरिंग अर्ली इज नॉट लिमिटेड टू यू. Right. It's Absolutely. also your family Right. who will be facing Right. all the other things. Key point here, guys, is that you take account of your family members, that उनका thought process क्या है, आप उनसे अच्छे से बात करो, उनसे Correct. डिस्कस करो. Yeah. एंड कल को ये डेफिनेटली हो सकता है कि अगर आपका प्लान है कि आप किसी और सिटी में मूव करोगे एंड वहाँ पे जाके लेट्स से टुमारो यू फील और योर वाइफ फील्स कि यार मुझे यहाँ पे नहीं जम रहा है, Right. राइट? सो देन ऑब्वियसली यू विल फेस अ लॉट ऑफ challenges and struggle, Correct. and there'll be a lot of mental battle that you'll have to go through. Yes, yes. कि यार मैं वापस अगर उस शहर में जाऊँ तो अब मेरे finances जो मैंने हिसाब से स्ट्रक्चर किए थे, I'll have to make big changes to it. As I said, lot of planning is needed. बहुत से लोग मैंने देखा है कि वो लोग जनरली इनके माइंड में सबसे पहली चीज़ आती है कि अभी हम दिल्ली में रह रहे हैं, किसी बड़ी सिटी में रह रहे हैं, बहुत पोल्यूशन है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, हम पहाड़ों पे जाकर रहेंगे, लेट्स से देहरादून जाकर रहेंगे, Right. कहीं और जाकर रहेंगे, इस टाइप से. पहाड़ों की लाइफ में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं 1 साल रहा हूँ देहरादून में. 8:30 बजे रात को पूरी मार्केट बंद मिलेगी आपको. एवरीथिंग इज क्लोज, एवरी रेस्टोरेंट इज क्लोज, है ना. लेकिन अगर दिल्ली की लाइफ को हम देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल, आप रात को 1 बजे 2 बजे भी चले जाओ, आपको सब कुछ मिलेगा. देयर आर शॉप्स ओपन 24 आवर्स, देयर आर जिम्स ओपन 24 आवर्स. पहाड़ों पे रहना आपको 1 साल अच्छा लगेगा, 2 साल अच्छा लगेगा, उसके बाद आप पक जाओगे. इफ यू आर नॉट हैबिचुअल टू इट, योर किड्स आर नॉट हैबिचुअल टू इट. दैट्स द होल थिंग दैट मैं इसको Yeah, that's a good factor to Yeah. consider. So inflation is definitely one, so you'll have to factor in a lot about this. A lot of planning is needed. Second is medical expenses and why health insurance is not the only thing which will save you. So maybe I'll go first because I have faced this personally. People think कि उनके medical expenses, जो बड़े medical expenses है, they only are hospitalization expenses. What they don't think in is, and especially because I've been involved in this medical space for a very long time, I kid you not, your regular medical bills in terms of, and those are not, let's say कि आप बीमार हो तो इसलिए आपको दवाइयाँ लेनी पड़ेगी, but you'll have to take them in the form of supplements, in the form of maybe protein powders, or in the form maybe something else which you'll need to for your longevity or for your good health. It can go up till 10,000 to 20,000 a month per person. right. And I've seen that in the case of my parents कि वो essential है. If they don't take it, you'll have that guilt. मतलब आपको वो गिल्ट होगा कि यार आप नहीं कर पा रहे हो उनके लिए. सो दिस इज वेरी बिग फैक्टर, एंड आई विल टेल यू अदर साइड आल्सो. दिस इज लाइफस्टाइल वाला फैक्टर कि जो आपको मेंटेन करना पड़ रहा है. इसके अलावा लेट्स सपोज इफ यू हैव पेरेंट्स डिपेंडेंट ऑन यू, और लेट्स से इवन यू एनकाउंटर अ क्रॉनिक इलनेस को मैनेज करना घर पे, जो हॉस्पिटलाइजेशन आपका होता है वो तो चलो अलग है, उसका आपको फिर भी मिल जाएगा. देयर आर लॉट ऑफ नर्स को घर पे रखना पड़ता है जब किसी को घर में क्रॉनिक इलनेस हो जाती है, अगर वो सीवियर होता जाता है. मेडिसिन के बिल्स बहुत बढ़ जाते हैं. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट यू हैव टू बाय मंथली in order to manage that chronic illness, in the form of disposables, in the form of whatnot, which are not covered, right? Which are not covered in maybe in insurance. So wo bills I've seen in my home going up till 20-25,000 a month, right? At times even beyond that. ये एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा फैक्टर है. सो माय रिकमेंडेशन हियर इज दैट जो भी आपका मंथली एक्सपेंसेस है उसमें आप एक टॉप अप और लगा के चलो ऑफ समवेयर अबाउट 25 to 30,000, स्पेशली फॉर मेडिकल, जो आपको आज जरूरत तो नहीं है, बट बी वेरी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट. इट कैन कम, राइट? स्पेशली इफ यू हैव ओल्ड पेरेंट्स, इफ यू स्पेशली are, let's say, in the age group of 45 to 50, 10 years down the line, 15, 20 years down the line, this is something which is going to take a lot out of your pocket. So if you are retiring, planning for fire, first of all, when it comes to health, so I think you have to have a very good health insurance for your parents, mother, father, your wife, your kids, and you. There will be expenses. ये ऐसा नहीं है कि आपने आज हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, अगले साल नहीं लिया, ये तो चलेगा. आपने एक बार ले लिया. और थोड़ा पहले आते हैं, when you are planning for fire, कि मैं 45 की एज पे this is my corpus will be, and this is I planned everything. But what you have not planned is
कि अगर आप 45 की एज तक लेट्स आप कॉर्पोरेट में जॉब कर रहे हो, यू हैव योर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस। इन कॉर्पोरेट इंश्योरेंस यू हैव लाइक नो क्वेश्चन आस्क्ड, कोई एग्जिस्टिंग इलनेस के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इंस्टेंटली आप उसका रिइंबर्समेंट ले सकते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट करवा सकते हैं। लेकिन वंस यू लीव योर जॉब, द डे व्हेन इट्स योर लास्ट डे इन द ऑफिस, योर कॉर्पोरेट इंश्योरेंस इज ओवर, एंड जो भी आपका फुल एंड फाइनल स्टेटमेंट आएगा उसमें आपका जो पैसा बचा होगा कॉर्पोरेट वो आपको क्रेडिट हो जाएगा। You are, that's the end of your corporate insurance. Now when we come to insurance which are after you are taking from the market, anywhere, any brand, let's say, so every health insurance have a waiting period. Existing illness का waiting period 3 to 4 years का होता है, कुछ ऐसी स्लो ग्रोइंग डिजीजेस होती हैं जिनका वेटिंग पीरियड 2 इयर्स तक का हो सकता है। सो मेक श्योर कि अगर आप 45 आपकी एज है जहां पर आप चाह रहे हो कि मेरा रिटायरमेंट, मतलब चाहता हूं कि मेरा 45 की एज पे हो जाए, यू शुड टेक हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम द मार्केट 4 इयर्स पहले। 41 की एज पे आपका कॉर्पोरेट इंश्योरेंस चल रहा है, लेकिन साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए कि बाय द टाइम आप रिटायर होंगे आपके ऊपर कोई रिस्क नहीं होगा। स्लो ग्रोइंग डिजीज है, एग्जिस्टिंग इलनेस है, हाइपरटेंशन वगैरह बढ़ती एज में प्रॉब्लम हो जाती है, नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट, मेरे फादर को भी प्रॉब्लम है, तो आई एम स्टिल वेटिंग ओवर दैट वेटिंग पीरियड कि वो कवर होगा तो फिर मैं करवाता हूँ, ऑल्दो अभी इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे चैलेंजेस आएंगे, लाइफ इतनी स्मूथ नहीं चलेगी जैसा आप सोच रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट ले लिया तो मैंने सब कुछ सोच लिया, मेरे पास कॉर्पस भी हो गया। नहीं, आपका कॉर्पस 1 महीने में खत्म हो सकता है। पेरेंट्स का स्पेसिफिकली आई थिंक पेरेंट्स का हेल्थ इंश्योरेंस आप करा के रखो कैसे भी है, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल आर वेरी फॉर्चुनेट इन द केस जिनके यू नो पेरेंट्स हैव रिटायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफिसेज तो उनको मिल जाता है, बट अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव इट। सो वो आप अभी ले लो, बिकॉज स्पेशली एक तो वो महंगा होता जाता है जितनी एज बढ़ती जाती है, एंड दूसरा फैक्टर ये आ जाता है कि बहुत कंपनीज तो देती ही नहीं, तो आपको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है कि आपको देखना पड़ेगा कि कहाँ से आप लोगे। एंड वन अदर थिंग विच आई थिंक मतलब जो इसी में कंटिन्यूड है, मैंने एक बोला कि लाइफस्टाइल एक्सपेंस जो आपका हेल्थ का बनेगा ही बनेगा, एक बड़ा ब्रैकेट ऑफ योर एक्सपेंसेस। सेकंड ट्रेंड दैट आई एम सीइंग व्हिच इज गोइंग वेरी बिग राइट नाउ, यूएस में ऑलरेडी इट हैज वेरी पॉप्ड अप, इंडिया में इट विल अगेन पॉप अप, कि देयर आर लॉट ऑफ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट्स दैट पीपल गो फॉर क्रॉनिक इलनेसेस। आपको वो जो ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स है उनमें वो रिजल्ट्स या फिर उन पे वो नहीं मिल पाता। जैसे फॉर एग्जांपल I've seen people for cancer also going for alternative treatments. I've seen people for very other, like for example, kidney issues, heart issues. अब वो obviously वो वाले treatments उसमें insurance में कभी covered नहीं होते। What you are saying is कि जो high-tech treatments होते हैं जिनको हम बोलते हैं let's say robotic treatment या उस type की treatment. It can be any type of treatment. So I'll give you one example. So my father had cancer. My father had gone through about 30-40 lakhs of chemotherapy, which was let's say covered by his office. Yeah. Right? But because he had last stage cancer, so I wanted to explore certain treatments. So I explored those certain treatments, results were good, but obviously that came out of from our pocket. About 15-20 lakhs came from our pocket, right? So that's the thing, because at these stages of illnesses, when let's say you have, because it's a life threatening disease, right? उस time पे आप नहीं सोचते हो सब कि यार मैं क्या पैसा बचा के रखूं, क्या करूं, क्या ना करूं, right? तो वो जब आता है तो तब आप वो सब नहीं सोच पाते कि यार मेरा फायर नंबर क्या, मेरा वो क्या, मेरा ये क्या। सो उस टाइम पे आपको कहीं होप दिखती है, ट्रीटमेंट दिखता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको कर ही लेना चाहिए, बट व्हेन यू लेट्स से डीप डाइव इनटू इट, आई हैव सीन दिस विद अ लॉट ऑफ पीयर्स इन क्रॉनिक इलनेसेस, स्पेशली जहाँ पे यू डोंट सी रिजल्ट्स फ्रॉम लेट्स से द ट्रेडिशनल मेडिकल वर्ल्ड। अ लॉट ऑफ पीपल एक्सप्लोर ट्रीटमेंट्स वेयर देयर आर रिजल्ट्स एंड दे वांट टू डू इट। उनको रिजल्ट मिले ना मिले, बट दे स्टिल वांट टू डू इट बिकॉज दे वांट टू गिव इट अ शॉट, दे वांट टू गिव इट अ ट्राई, right? And at that time you don't want finances to be a challenge, so that is again very big factor. Like that's my biggest concern when it comes to fire. True. These treatments, medical treatments, go very high and are not covered by insurance. Mental health during post retirement, and this is a big one. Yeah, because I've personally seen in the case of father. So my father obviously did not retire early; he retired at 60. But post 60, his life kind of became very depressing in terms of social interactions, in terms of how to spend his day, and that's not the case with everyone. But point I'm trying to make is there are certain personalities which can't survive in isolation. Correct. Right? There are certain personalities that are very good in isolation, but you need to identify कि आपकी personality कैसी है, आप कैसे हो, आप कम बोलते हो, ज़्यादा बोलते हो, आप खुद में ज़्यादा खुश रहते हो या लोगों के साथ ज़्यादा खुश रहते हो. So this is obviously because this happens. मतलब there are a lot of fire folks who have said this कि यार 6 महीने बाद ठीक है मूवीज देख ली, घूम लिया, ये कर लिया, बट उसके बाद अब क्या,
right? Correct. This is a burning question that they Hmm. face. Hmm. Then people start to do कि चलो ठीक है थोड़ी कुछ हॉबी एक्सप्लोर कर लेते हैं. अच्छा मैं यहाँ से थोड़ा एक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी कर सकता हूँ, थोड़ा बिजी भी हो जाऊंगा, 4-5 घंटे ये कर लेता हूँ. Even I can give my father's example. So my father was a policeman. He Right. retired as a sub inspector in police, Right. and he retired 6 years back. I think the biggest mistake as a family we did is giving him a smartphone. एक ऐसा आदमी, मतलब my father was very active in his Right. duty. Right. ठीक है, मैं जब थाने में जाता था लेट से उनसे मिलने के लिए, तो बाकी पुलिस वाले बैठे हैं, Right. बात कर रहे हैं इधर उधर की. मेरे पिताजी खड़े हैं, जो सेल होता है जहाँ पे रखते हैं टेम्परेरीली किसी Right. क्रिमिनल वगैरह को, वहाँ खड़े हैं और लगे हुए डंडा बजाने में. ठीक है, तो मेरे फादर उस टाइप के थे. अगर किसी चौराहे पे वो खड़े हैं तो वहाँ पे कोई ट्रिपल करके नहीं निकल सकता, कोई लॉ ब्रेक नहीं कर सकता, क्योंकि Right. उन्हें पता है कि ये आदमी खड़ा है, ये छोड़ेगा नहीं. इस Right. टाइप के थे. अब ऐसा आदमी, मतलब मेरे फादर रिटायर होके जब घर आते हैं, ऑब्वियसली देयर इज अ बिग शिफ्ट इन योर Right. लाइफस्टाइल, Right. है ना. व्हेन यू आर ऑन ड्यूटी और इन एनी जॉब, यू हैव अ पर्पस ऑफ वेकिंग अप अर्ली टुडे, कि आज मुझे 9 बजे वहाँ पहुँचना है, तो मुझे 7 बजे उठना पड़ेगा, 8 बजे मैं निकलूंगा, 1 घंटे में पहुँच जाऊंगा. ठीक है, और रेडी होना है, यू हैव योर क्लोथ्स रेडी. अगर आप जैसे पुलिस में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे फादर थे, तो या उनको प्रॉपर यूनिफॉर्म वगैरह की आदत पड़ जाती है. बट वंस यू रिटायर, यू आर होम. Right. आपकी एक्सपेक्टेशंस या तो उन्होंने जैसे सेट भी नहीं की होंगी, सब कुछ एकदम से चेंज हो जाता है. Right. यू आर नॉट वेकिंग अप अर्ली लाइक यू वर डूइंग. पहले 2-3 दिन, हफ्ता भर आप ठीक है उसी डिसिप्लिन को फॉलो करने की कोशिश करोगे, बट अल्टीमेटली हो जाता है. सो लाइक आई वाज सेइंग कि हमने बहुत बड़ी मिस्टेक करी उनको एक स्मार्टफोन देके, कि मैंने जब मैं 1 महीने बाद वापस रिटायरमेंट के बाद जब मैं पापा से मिलने गया, तो मैंने देखा वो रूम में बैठे हैं और बस बैक टू बैक स्क्रॉल पे लगे हुए हैं सोशल मीडिया पे. तो उनके पास इंस्टाग्राम तो आई थिंक उनको आज तक भी नहीं पता, बट हाँ, और दूसरी जो लोकल ऐप्स हैं जिनमें कुछ ना कुछ कॉमेडी फनी आता रहता है, बैक टू बैक देख रहे हैं. एंड माई फोन वॉज ऑलवेज यूज टू पिंग पिंग इन द मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वाला मैसेज, दिस मैसेज, दैट मैसेज. और उनकी गुड मॉर्निंग एक मैसेज से कभी नहीं होती थी, 7 to 8 मैसेज, 10 मैसेजेस. या देयर इज अ बिग मेंटल शिफ्ट. तो जब यहाँ पर क्या होता है कि लेट्स से आप ऑफिस में हैं, ठीक है, यू वर्क एज पर योर कैलेंडर. आप सुबह उठते हो, इस आपकी 9 बजे आप ऑफिस पहुंचे, आपको पता है 9:30 मेरी मीटिंग है, विच इज़ एज पर कैलेंडर. उसके बाद हमारा एनवायरनमेंट का डिप्लॉयमेंट है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट पर डिप्लॉयमेंट करना है. उसके बाद आपका लंच होता है, कुछ और बीच में स्टेटस मीटिंग्स होती हैं एज पर कैलेंडर्स, टाइम्स सेट होते हैं. इवनिंग चाय सुट्टा, फिर ईओडी पे क्लाइंट के साथ मीटिंग, एंड देन यू कम बैक होम. नॉर्मल वर्क लाइफ में यही होता है. व्हेन यू रिटायर, you have to leave that calendar in office. Right. You cannot bring that calendar home. Yeah. क्योंकि आप स्केड्यूल जो फॉलो करते थे ऑफिस में, आपके फैमिली मेंबर्स ने, ऐसा तो नहीं है कि आपकी वाइफ ने कैलेंडर पे सेट किया था कि 12:30 बजे लंच के लिए उठना है, जाना है, तैयार होना है, मतलब लंच की तैयारी करनी है. किड्स ने सोचा कैलेंडर पे डाल देते हैं. कैलेंडर नेवर फॉलोज इन फैमिली. तो आपको कैलेंडर अपना घर पे रखना होगा. आप ऑफिस में फॉलो करते थे, घर पे नहीं फॉलो कर पाएंगे, क्योंकि एवरी मेंबर इन योर फैमिली, यू आर रिटायर्ड नॉट दे, लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो. उनको रिटायरमेंट नहीं मिला है, तो ऑब्वियसली आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी, जो आपने एक रूटीन सेट किया हुआ था, कंप्लीटली वो रूटीन चेंज होने वाला है हर चीज़ को लेके. एक सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने बहुत से पॉडकास्ट में, वीडियोस में, बुक्स में देखा है, डिप्रेशन का बिगेस्ट रीजन जो होता है वो है रूटीन चेंज. आप जिस रूटीन पे हो, उस रूटीन में जरा सा भी चेंज आता है, लेट्स से फॉर 1 वीक, फॉर अ मंथ, यू विल डेफिनेटली बी इन द सिचुएशन ऑफ डिप्रेशन. मैं ये नहीं कह रहा कि हो जाएगा, बट हाँ, वो टेम्परेली आ सकता है. मतलब इसमें बेसिकली if let's say you do have plans of early retirement, this is obviously something you're going to face in terms of a bit of loneliness and a bit of unplanned things, और रूटीन आपका वो नहीं बना होगा. आपको 3-4 महीने बाद वो डेफिनेटली आएगा कि जैसे वो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का होता है कि वो धीरे धीरे ऐसे क्रैश करेगा. यू विल हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट. एंड यू कैन सी, मतलब देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस दैट यू कैन सी ऑन इंटरनेट वेयर पीपल हैव डिस्कस्ड दिस. So better way to go about it is that you start designing your routine which doesn't disturb your family's routine, right? So you correct. plan it in a sense. For example, you like to do gardening, so you spend 3 hours in gardening. You can maybe do some sort of commercial activity, or you, let's say, can take up something which occupies 5 to 6 hours of your time that you like doing. Then obviously, it will co-align with your family as well, right? Because you have your personal space of 5 to 6 hours, and that is what is even needed. your family was not habitual of you ना, कि आप दिन भर घर में रहोगे. 9 hours तो आपके बाहर जाते थे ऑफिस में, अभी आप घर पे हो, आपकी वजह से उनका स्केड्यूल भी खराब होगा. आपकी तरफ से कुछ 4-5 क्वेश्चन एक्स्ट्रा आ सकते हैं,
Right. अपनी वाइफ से आप पूछोगे, अपने बच्चों से आप पूछोगे, तो वो भी हो सकता है इरिटेट हो, Right. विच इज़ अ नॉर्मल सीन, राइट? कि Right. हर एक को अपना पर्सनल स्पेस चाहिए होता है। Right. आप अगर अर्ली रिटायरमेंट ले रहे हो, तो यानी कि Hmm. उनका पर्सनल स्पेस थोड़ा-सा ब्रीच होगा। Right. अगर इफ यू आर रिटायरिंग एट नॉर्मल एज, लेट्स से 60, Hmm. है ना? तो बाय द टाइम यू आर 60, आपके बच्चे भी ग्रोन अप हो चुके होते हैं। Yeah. उनके अंदर एक डिसिप्लिन काइंड ऑफ थिंग डेवलप हो सकती है कि हाँ, हो गई हो, Hmm. और मे बी दे आर मैरिड और Hmm. नियरली गोइंग टू बी मैरिड, Right. ज़्यादा समझदार हैं, तो आपकी सिचुएशन को समझ पाएँगे। लेकिन अर्ली आप 15 साल पहले ला रहे हो उस चीज़ को। Hmm. आपके बच्चे अभी भी अपनी उस एज पे हैं, जो 13-14 वाली जो एज होती है, व्हिच इज़ वेरी Right. क्रिटिकल एज, मे बी वो आपको ना समझें, Right. है ना? तो यू हैव टू गेट रेडी अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। Miscalculation of monthly expenses. So this is even big one. So I've been tracking my expenses for last 1 year. मतलब एक एक एक्सेल पे सब एक्सपेंस लिखा हुआ है, कॉमन फैमिली एक्सपेंस, माय पर्सनल एक्सपेंस। तो यूजुअली क्या होता है, मैं कभी भी किसी पॉडकास्ट से पूछता हूँ ना उनका मंथली एक्सपेंस क्या है, जनरली स्पेशली फायर फोक्स क्योंकि वो फ्रूगल होते हैं, देयर नंबर यूजुअली कम्स अबाउट 40,000 to 50,000 अ मंथ, मैक्स टू मैक्स 60-70, इससे ज़्यादा नहीं। I am also someone who considers his expense to be 40,000-50,000 a month as a common. But when I started calculating it, core expense, yes, it is 35, 40, 45, 50, इसके beyond नहीं जाता है. But what we don't realize है, और वहाँ पे जाके सारी math गड़बड़ होती है, कि it is not 50, it is somewhere about maybe 60, 70, 75. And at months it can even go higher. There are certain purchases. These are low ticket to high ticket purchases which you can't avoid. हर महीने कुछ ना कुछ ऐसा घर में खर्चा आ ही जाता है, which let's say you, जैसे फॉर एग्जाम्पल गीज़र खराब हो गया तो नया गीज़र लगवाना है, कुछ ऐसी चीज़ है जो घर में बहुत टाइम से पेंडिंग पड़ी है, होनी थी, वो इस महीने हो गई, क्लोज फैमिली की हाँ, शादी आ राइट। गई तो कपड़ों का खर्चा इस महीने बढ़ हुँ, गया, स्टोव खराब हो गया, वो नया आना है, कुछ और चीज़ है, वो तो कुछ ना कुछ ऐसा आ ही जाता है। मतलब आई वाज शॉक्ड, हुँ, मैं ऐसे हर महीने में ऐसे सोचता था कि ये नहीं आएगा, हुँ, मतलब इस महीने एक्सपेंस इसी रेंज में रहेगा, हुँ, बट समथिंग पॉप्स अप एंड इट मेक्स सेंस कि हाँ यार ये खर्चा तो आना ही था, करेक्ट, मतलब यू कांट अवॉइड दैट। हाँ। वो ऐसा नहीं है कि वो इम्पल्सिव परचेज है या फिर हुँ, कोई ऐसी शौक में चीज़ है, कुछ नया लॉन्च हुआ है ले लिया, हुँ, नथिंग सॉर्ट ऑफ दैट। वेरी रेगुलर थिंग दैट यू नीड इन योर हाउस, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा एंड यू विल हैव टू परचेज दैट। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो थोड़ा मिसकैलकुलेशन इस सेंस में होता है लोगों वाले एक्सपेंस का, कि वो सब ऐसे ही बोलते हैं 40-50 हज़ार है मेरा महीने का एक्सपेंस, हुँ। बट आई थिंक इट इज़ बियॉन्ड। आई थिंक व्हाट पीपल से बियॉन्ड उसके ऊपर इट्स अबाउट प्लस 20-30%। सो इवन आई वाज़ कैलकुलेटिंग माय मंथली एक्सपेंसेस। एक पर्टिकुलर मैंने वीडियो की थी, उसमें मैं इन्हीं सब चीज़ों के बारे में बात कर रहा था, और इवन मैंने उस वीडियो में दिखाया भी था कि मेरे मंथली एक्सपेंसेस ये हैं। आई शोड द कंप्लीट एक्सेल शीट। राइट। सो इट टर्न्ड आउट टू बी, आई थिंक 67,000 और 70,000 के आसपास का मंथली एक्सपेंसेस विदाउट इन्वेस्टमेंट्स। मैंने राइट। उसमें इन्वेस्टमेंट्स काउंट नहीं की थी, यानी कि मेरे बेटे के लिए जो एसआईपी जाती है और हम्म। दूसरी जो मेरी गोल्स हैं उनके लिए जो एसआईपी जाती है वो अलग से थी। राइट। अगर उनको भी मैं इंक्लूड कर दूंगा, सो इट कैन गो अराउंड 1.5 लाख पर मंथ, बट स्टिल लाइक यू सेड, ये ऐसे बहुत से एक्सपेंसेस रियल में होते हैं। फैमिली में किसी बच्चे का बर्थडे, आपके घर में किसी नियर, मतलब बिल्कुल क्लोज रिलेशंस में किसी लड़की की शादी है, तो राइट। उसमें जनरली एज इंडियंस लाइक वी राइट। थिंक कि उसमें हम ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं इस टाइप से, तो हम्म। ऐसे एक्सपेंसेस तो हर महीने आते हैं। प्लस इमरजेंसी, लेट्स से अगर कुछ ऐसा हेल्थ इश्यूज वगैरह आते हैं, तो वैसे तो हम्म। जनरली वो हेल्थ इंश्योरेंस में कवर हो जाते हैं, बट उसके बियॉन्ड जो खर्चे होते हैं, जैसे भी आपने बताया था कि वो खर्चे भी आ सकते हैं। राइट। ठीक है? अब और भी रिस्क हैं, मतलब मैं यहाँ पे डराना नहीं चाहूँगा लोगों को, बट हम्म। ये है कि लेट्स से अगर आपके घर में थेफ्ट हो जाता है, बहुत सारे आपके जो काम हैं वो हिट होंगे, और आपने जितनी भी कैलकुलेशंस आज तक की थी, वो हम्म। अगेन यू हैव टू रिकैलकुलेट इट। ठीक राइट। है? फायर लग जाती है, हम्म। कुछ भी ऐसा, मतलब आई एम जस्ट यूजिंग माय मंकी माइंड, है ना? राइट। कि कुछ भी ऐसा आ सकता है जो आपके मंथली एक्सपेंसेस को रियल में हिट करता है। Yeah, I think most of the points you've covered, I think these are one thing, let's say, still, let's say, is there, which let's say you also covered kind of, कि अभी आपने जो सोच के रिटायर किया है 5 साल बाद आपका कुछ एक परचेज करने का मन कर गया, which is let's say a big purchase. One good point which let's say I discovered, especially with my research, was that every 10 years your money expectation changes. What typically happens is that हर 10 साल बाद में आपको ये लगता है कि जितना पैसा मेरे पास पहले था उससे ज़्यादा ही मुझे चाहिए, मतलब आपको हर 10 साल में वो अपग्रेड करने का मन करता है, राइट। कि आज मुझे लग रहा है कि यार जैसे मैंने मेरा 10 लाख बनाया,
जब मैं वो चेस कर रहा था मेरे को बड़ा फिगर लग रहा था, बट अब मैं जब वहाँ पहुँच गया हूँ तो मेरे को वो कुछ भी नहीं लगता है। राइट। अब जैसे जैसे मैं और एक्सपीरियंस लेता हूँ, मेरे से जो और बड़े लोग हैं एज में, मैं उनके खर्चे देखता हूँ या फिर उनकी लाइफ प्लानिंग देखता हूँ कैसे कैसे चल रही है, तो मुझे लगता है शायद 1 करोड़ भी कम है, right? So this always happens, you don't realize it. So this is also I think one big factor, because होगा क्या कि आपने अगर 45-50 में भी रिटायरमेंट लिया है एंड आपके जो peers, friends, colleagues वगैरह सब कुछ है, they'll still have a monthly income. By the time you are, let's say, 50, 55, you'll see a big gap there, right? And that might hit your expectation in terms of money. सो देर आर मनी विच वी इनहेरिट ऑल्सो, ठीक Yeah. है। तो आपने लेट्स से आपके पास इनहेरिटेंस के नाम पे कुछ नहीं है, देन देर मे बी लॉट ऑफ पीपल, राइट, कि आपका जो फैमिली होम है बस वो अकेला घर है, आपकी फैमिली मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहती है ना। तो आपका जो पीयर है, लेट्स से आपके जो फ्रेंड्स हैं या फिर आपकी फैमिली में कोई और है जो अर्ली रिटायर आपके साथ हुआ है या आगे पीछे हुआ है, दे मे इनहेरिट अ लॉट ऑफ मनी फ्रॉम देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह। तो अगेन दे कैन यूज दैट मनी टू अगेन अपने एक्सपेंसेस को बढ़ाने के लिए, एक बड़ा घर लेने के लिए। बट उस टाइम आपको ऐसा लगेगा कि शायद यार मैंने जो पैसा बचाया कम रह गया, और थोड़ा सा मुझे शायद इसके बारे में सोचना चाहिए था और कुछ प्लान्स बनाने चाहिए थे इस तरीके से। सो येस, एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ेंगी, यू कैन नेवर कंट्रोल इट। या जब प्लान जो आपने सोचा था फायर के टाइम पे, उस प्लान पे आप जितना ज़्यादा स्टिक करोगे, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ आगे चल के उतनी ही ईजी रहेगी।